Hello guys, welcome to my channel, and today we'll be studying about that what is management. It's a very familiar topic and you are very aware of what does management means. But during your examinations, when you start writing on it, you don't give a very good stuff to your teachers. So in order to succeed in writing during your papers, here we are to explain you how to write, how to attempt your questions. First of all, for management, any question regarding management, first of all just give a brief of what does it mean. So management is the art of getting things done through others. आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, as soon as you enter, you can see that everything is being arranged properly. तो उनका जो टॉप हेड होता है उसने एम्प्लॉयज़ को रख रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ पे वो उनसे काम कराता है. डेफिनेटली दे आर पेड बट यू आर यूजिंग देयर एफर्ट्स. सो मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अ आर्ट जिसमें हम अपना जो काम होता है, अपनी जो भी हमारे को उनसे आउटकम चाहिए होता है, वो हम किसके थ्रू करते हैं? थ्रू अदर्स, विद द हेल्प ऑफ अदर्स. डेफिनेटली वी पे देम, बट उनकी जो पावर लगती है, स्ट्रेंथ लगती है, वो हम किसी और से लेते हैं. So that is what here they are mentioning, that it is the art of getting things done through others. With formally organized groups, definitely formally organized groups होने चाहिए, क्योंकि आप अपने मामा जी से या चाचा जी से नहीं करवा सकते हो काम, और अगर करवाओगे भी तो डेफिनेटली आप उनको क्या पे करोगे? तो ये ऐसे हो जाता है ना, मेरे तो फैमिली मेम्बर्स हैं, अरे अपने हैं. डेफिनेटली तो इट मस्ट बी एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. कोई फॉर्मल रिलेशनशिप होनी चाहिए, जैसे कि ऑफिस टू ऑफिस आप मिलें और आप वहाँ पे काम करें साथ में, तो एकदम मतलब अननोन एनवायरनमेंट होता है आपके लिए, और डेफिनेटली जब आप वहाँ काम करने लगते हो धीरे धीरे तो आप उसके नोन हो जाते हो. दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो वहाँ पे लोग काम करते हैं. Now, there is a very great question that arises, that management is an art or a science. So, management is an art as well as a science. Okay, now this will explain why is it so. Management is both art as well as science. It's a combination of both science and art. Science is based on certain principles, that there are certain formulas, certain rules and regulations that you have to follow. And similarly, when you do management, there are certain rules. वहाँ आपको वहाँ पे भी एक दायरे में रह के मैनेजमेंट करनी होती है. एक आपका जो है certain set principles बन जाते हैं when आप मैनेजमेंट को कर रहे हो. किसी भी चीज़ को करने के लिए फॉर्मली एक रूल रेगुलेशन होता है, सबकी अपनी अपनी जो है रूल बुक होती है, सर्टेन नॉर्म्स आर देयर, एंड दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर प्रिंसिपल्स, एंड दैट इज़ व्हाई इज इट्स अ साइंस. नाउ व्हाई इज इट्स एन आर्ट? एनीबडी? ओके, आई विल टेल. Yeah, so I was saying, anybody doing any kind of art, when you draw something, when you picturize something, you use your skill, you use your talent, and that's what is also required in this management. Art is associated with skill, talent, beautifully, expressing your things. तो वहाँ पे जो आर्ट होता है वो आपकी उस चीज़ को रेफ़र करते हैं जो आपके अंदर क्षमता है करने की, एक बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर. दैट इज़ वॉट, एंड हेयर इट्स गिवन डिस्क्रिप्शन. लुक, साइंस इज़ समथिंग दैट इज़ लर्नड, आर्ट इज़ समथिंग विच कैन बी प्रैक्टिस्ड. Science, so you have to learn. So you have to learn something, you have to grab knowledge of something, and then you have to implement your activities by using both combination of science and of art. Science is to know, art is to do. Science is तो we know that this happens and that happens, लेकिन art जो होता है उसको करना करके पता चलता है. If I say I know how to draw a beautiful sketch, how would you believe? You will believe when you'll see my sketching.
So art is to do and science is to know. I can explain you what is science, what are the principles of science. So that is just to know, and art is to do as well. A manager is a scientist and an artist. Manager is both scientist as well as artist. Scientist, as he knows all the principles, all the rules, all the regulations he's aware of. An artist, because he's using his skills. वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके अपना जो है मैनेजर की अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है. What is an art and why management is an art? It's a very, now I have just given you a brief description, and here is something detailed description of what I have just told you. Skill, knowledge is skill, profession. Art is a practical application of the theoretical knowledge. द theoretical knowledge, जो भी हमको theoretically knowledge है, जैसे कि इफ़ यू आर डूइंग BCom, BBA, एनीथिंग रिगार्डिंग मैनेजमेंट इफ़ यू आर डूइंग, तो आपको उसकी theoretical knowledge ग्रैब हो जाती है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. बट व्हेन यू डू योर job, when you gain experience, you do internship, at that time you gain knowledge, that is called experience. Okay, management is the art of arts because it is the organizer and utilizers of human talent. हमको ह्यूमन टैलेंट को ऑर्गेनाइज भी करना है और ह्यूमन टैलेंट को हमको यूटिलाइज भी करना है. ऑर्गेनाइज इन द सेंस, हमको सारे जितने भी वहाँ पे मौजूद लोग होंगे, दे लीव एंड गो, अगर हम उनके साथ रूडली अब्रप्टली एक्ट करेंगे. और यूटिलाइज़ कैसे करना है, उनसे काम करवाना है, जितना उनसे हम काम कराते हैं उसका हम उनको पेमेंट करते हैं. तो यूटिलाइज़र और ऑर्गेनाइज़र दोनों एक मैनेजमेंट के जो भी अथॉरिटी है उसको आना चाहिए. Now these are 5 points that is really very required for a management procedure to go on. That's practical knowledge, a personal skill should be there, result oriented approach होनी चाहिए. result oriented approach क्यों होनी चाहिए? because management किस लिए है? एक goal achieve करने के लिए है. that's why it must be a result oriented approach. constructive skill होती है constant practice aimed at further improvement. कंस्ट्रक्टिव स्किल, एक के बाद एक यू स्टार्ट ग्रैबिंग थिंग्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ. कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एम्ड एट फर्दर इम्प्रूवमेंट होएगी आपकी, तो उसके साथ आपको एक कांस्टेंट प्रैक्टिस रखनी है जिससे कि आप फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सको, आगे अपना गोल अचीव कर सको. So, science is representing knowledge gathered by observation and experiment, critically tested, systematized and brought. ये हमारा जो भी है ये साइंस के बारे में है. ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, टेस्ट कंडक्ट करते हैं सिस्टमैटिकली, और इन सब का जो मिश्रण होता है, ये इंटीग्रेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, इन सब का जो मिश्रण होता है वो साइंस में आता है, जो एक मैनेजर के लिए एसेंशियल है फॉर डूइंग मैनेजमेंट. बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एंड जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, जो साइंस होती है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है. अगर पानी फ्रिज में रखने से ठंडा होता है तो वो ठंडा ही होगा, कोई उसको नहीं कहेगा कि फ्रिज में रखने से गर्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स साइंस. एंड जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, बहुत जनरल से प्रिंसिपल्स, इस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स. जो भी कॉजेज़ हैं, जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बन जाती है. अगर आप ये करोगे तो ये होगा और ये करोगे तो वो होगा. डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट्स. साइंटिफिक इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंट्स को लेके ही साइंस डेवलप हुई है. और बिकॉज मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, तो मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल चीज़ पे डिपेंड करता है. एक्सपेरिमेंटल कैसे? इफ़ यू एक्ट रूडली टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़, देन एम्प्लॉयज़ विल स्टार्ट लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन नो मैटर हाउ मच यू पे दैम. पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, न्यू इन्वेंशंस होते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे काम करना चाहिए हमको मैनेजमेंट में, जिससे कि हम काम अच्छे से कर पाएँ और वो जितना जो भी हमारा गोल है वो अचीव हो पाए.
So management contains both elements, those of science and those of an art. For art and science complement each other and are not mutually exclusive. तो ये दोनों एलिमेंट्स का मिश्रण मैनेजमेंट होता है. एक परफेक्ट मैनेजमेंट इन दोनों से ही चलता है, साइंस एज वेल एज आर्ट. Hope you like the video. Do subscribe my channel, and my next video would be on principles of management. Thank you.